Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you in your maths class. We are studying chapter 14, factorization from class 8th maths. I hope you are enjoying solving the questions from this chapter, and in this series today we are going to take up question 4 and 5 from exercise 14.3 based on the division of algebraic expressions. We have already completed the first 3 questions from this same exercise. So let us start with question number 4 from exercise 14.3. You be ready with your pen and paper and keep doing the questions as we do them here. We take this first one, divide as directed. We have to divide 5 into 2x plus 1 into 3x plus 5. We have to divide this expression by 2x plus 1. Now what we see here, the dividend here, this polynomial, this dividend is already in the factor form. ये पहले से ही factor form में है, तो अब हमें dividend को factorize नहीं करना है. And now what we see, we can easily divide as this factor 2x plus 1 is common in the numerator and the denominator. We can easily cancel it out and then we will get the answer as 5 into 3x plus 5. So simple, so easy. This is the answer. कितना easy है divide करना, isn't it? Next we have this expression 26xy x plus 5 y minus 4. इसको divide करना है by 13 into x into y minus 4. यहाँ आप देखेंगे फिर से जो dividend है ये पहले से ही फैक्टर फॉर्म में है और इजीली अब हम डिवाइड कर सकते हैं. लुक आउट फॉर द सेम फैक्टर्स इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. यू विल सी y minus 4, y minus 4. This can be easily cancelled in numerator and denominator. Also we see x can be cancelled by x, and then 13 ones are 13 twos are 26. So we can take the answer 2y into x plus 5. This is the answer. Very easy, very simple. तो जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऐसे में जो बच गया है वो ही आपका आंसर होगा. गेटिंग इट? नेक्स्ट वी हैव दिस वन 52 p q r, then p plus q, then q plus r, then r plus p. ये देखिए फैक्टर फॉर्म है ये डिविडेंड का, सभी फैक्टर्स हैं और ऐसे में हम इजीली डिवाइड कर पाएंगे. जब फैक्टर फॉर्म ना हो डिविडेंड में तब हमें पहले उसे फैक्टराइज करके सिंपल फॉर्म में लाना होगा फैक्टर फॉर्म में, और तब हम डिवाइड करते हैं. यहाँ पहले से ही फैक्टर्स हो रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इन द डिनोमिनेटर वी हैव 104 p q q plus r and then r plus p. Now we can cancel the factors in numerator and denominator which are the same. q plus r और q plus r cancel हो जाएंगे. r plus p cancel it out. p से p cancel हो गया, q से q cancel हो गया. Now whatever is left we can write it here. This can be written as 52 upon 104 and here we have r into p plus q. Now we need to cancel out this 52 and 104. For this either you can write them in their prime factors. 52 को prime factors में अगर आप convert करें you can write it as 2 2s are 4 and then 6 times 12, 2 13s are and then 13 1s are. So we can write it as 2 into 2 into 13, then we have r into p plus q. And then in the denominator we can take the prime factors of 104. 104 dividing by 2 52, again by 2 we have 26, again by 2 13 times and then 13 ones. So we can write here 2 into 2 into 2 into 13. देख रहे हैं आप? तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए 104 के. Now we can easily cancel 2 into 2 into 13, 2 into 2 into 13, and what is left? It is 1 by 2 r into p plus q, and this is the answer. This is the quotient, the answer after dividing these two expressions. ठीक है, तो यहाँ पहले से ही जो डिविडेंड है वो फैक्टर फॉर्म में है. ऐसे में जो सेम फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनको कैंसिल आउट कर दीजिए और फिर जो बच गया उसको और सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल गया है. नेक्स्ट वी टेक हियर, वी हैव टू डिवाइड 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3. इसको डिवाइड करना है
by 5 into y plus 4. Now it's easy, we can divide 20 by 5, it will go 4 times, we can write here 4 and y plus 4 will be cancelled by y plus 4 and what will be left here, y square plus 5y plus 3. ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसे आगे फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं. तो ऐसे में आप देखिए 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे में आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं होगी. पर 3 के फैक्टर्स देखिए आप, 3 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 1, इनको सम अप करने से 4 आता है, ये 5 नहीं आ रहा मिडिल टर्म, तो ऐसे में हम फैक्टराइज नहीं कर सकते एंड सो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए जहां आप देखें वाई स्क्वायर है, वाई है, इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो आप चेक कर लिया कीजिए कि क्या इसके आगे फैक्टर्स पॉसिबल है या नहीं. तो अभी हम देख रहे हैं नहीं है पॉसिबल, तो यहीं रुक जाइए और यहाँ पर हमने 5 से कैंसिल कर दिया 20 को 4 टाइम्स, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वी कैन टेक हियर x into x plus 1, then x plus 2, x plus 3. We have to divide this by x into x plus 1. Simple and easy. देखिए x से x कैंसिल हो रहा है, x plus 1 से x plus 1 कैंसिल हो जाएगा and then the answer is equal to x plus 2 into x plus 3. कितना सिंपल है, easy है, मज़ेदार है. Next we take this one, factorize the expressions and divide them as directed. Here we have to divide y square plus 7y plus 10 by y plus 5. अब आप देखिए यहाँ जो डिविडेंड है अब ये फैक्टर फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इसके फैक्टर्स करने होंगे, उसके बाद ही हम डिवाइड कर पाएंगे. अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे इनमें पहले से ही जो डिविडेंड था वो फैक्टर फॉर्म में था और इसीलिए इजीली डिवीजन हो पा रहा था. लेकिन अब हमें पहले इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करने होंगे, तो उसके लिए आप देखिए 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं होगी. 3 टर्म्स हैं, ऑब्वियस है कि यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो पाएगी और ऐसे में हम देख रहे हैं 10 के फैक्टर्स जिनका सम हो 7. वी लुक आउट फॉर फैक्टर्स ऑफ 10. 2 into 5 it's 10 and also 2 plus 5 it's 7. तो हमने इसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढ लिए हैं जिनको ऐड करने पर हमें ये मिडिल नंबर मिल जाए 7 और ऐसे में हम 7 को स्प्लिट कर देंगे एज 2 plus 5. वी राइट इट हियर. This can be written as y square plus, now 7 can be written as 2 plus 5 y plus 10 upon we have y plus 5. This can be written as y square plus 2y plus 5y plus 10 upon we have y plus 5. ये साथ साथ चलता रहेगा. ठीक है, यहाँ हमने 2 को y से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को भी y से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये ऊपर आप देखेंगे 4 टर्म्स हो गई. फर्स्ट 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, लास्ट 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे और फैक्टराइज करेंगे. फ्रॉम हियर वी कैन टेक, लेट मी टेक हियर, यस, यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू y इंटू, देखिए y को कॉमन ले लिया है तो आएगा y प्लस 2 हियर एंड देन प्लस हियर वी हैव 5 एज द कॉमन फैक्टर इन द लास्ट 2 टर्म्स, तो उसको बाहर ले लीजिए और फिर यहाँ से y बचेगा and 5 2s are 10, so we write here plus 2 upon we have y plus 5. ठीक है, ये समझ में आ गया. फर्स्ट 2 में हमने y को कॉमन ले लिया and then we have y plus 2 inside. यहाँ पर हमने 5 को कॉमन ले लिया and then we have y plus 2 inside. अब यहाँ पर y plus 2 कॉमन फैक्टर है, इसको भी बाहर ले लीजिए आप and what will be inside, यहाँ से y और यहाँ से plus 5 and then we have y plus 5 in the denominator also. अब आप देखिए ये फैक्टर फॉर्म में आ गया डिविडेंड और इजीली अब हम कैंसिल कर सकते हैं सेम फैक्टर्स को. y plus 5 से y plus 5 कैंसिल एंड द आंसर इज y plus 2. दिस इज द आंसर ऑफ डिविजन. ओके, नेक्स्ट वी टेक हियर दिस वन, m square minus 14m minus 32. we have to divide it by m plus 2. now what we see again that the dividend it is not in the factor form. तो पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे, इसको फैक्टर फॉर्म में लाएंगे और तभी हम इजीली डिवाइड कर पाएंगे. वी राइट द डिविडेंड हियर. पहले डिविडेंड को ही सेपरेटली ले सकते हैं.
this can be taken as m square minus 14m minus 32. अब आप देखिए 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी. आइडेंटिटी कब अप्लाई होती है? जब ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो और ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो, पर अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसे केस में हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करेंगे. 32 के फैक्टर्स लेकर चलते हैं. 32 के फैक्टर्स हमें पता है 8 4 32 होता है. देन वी नो 16 2 इज ऑल्सो 32. अब हमें वो फैक्टर्स लेके चलने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिडिल नंबर 14 आए, क्योंकि ये है -32. -32 है इसलिए हम फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. जो 32 के फैक्टर्स हमें मिलेंगे उनको माइनस करेंगे और माइनस करने पे हमें क्या चाहिए? ये मिडिल नंबर 14. तो हम देख रहे हैं 8 और 4 से हमारा काम नहीं बन रहा है. 16 minus 2 दिस इज इक्वल टू 14. तो ये वो हमारे काम का पेयर है. नाउ हियर इन प्लेस ऑफ 14 वी विल राइट 16 minus 2. तो 14 को हम स्प्लिट कर देंगे एज 16 minus 2. वी राइट हियर m square minus 16 minus 2 into m minus 32. नाउ हियर m square will be as it is. और अब यहाँ आगे से तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा दोनों से और पीछे से ये m मल्टीप्लाई होगा दोनों से. और ऐसे में क्या मिलेगा हमें? -16m और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2m minus 32. अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गई. फर्स्ट 2 में हम कॉमन लेंगे और फैक्टराइज करेंगे. व्हाट इज कॉमन इन द फर्स्ट 2 टर्म्स? इट इज m. एंड देन टेक इट आउट. m स्क्वायर में से एक m बाहर एक अंदर, माइनस m इज आउटसाइड, 16 विल बी इनसाइड. और अब हम लास्ट 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे. इनमें कॉमन फैक्टर बाहर लेके फैक्टराइज करेंगे. हियर वी हैव प्लस और 2 और 32 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं तो 2 को कॉमन ले लीजिए. m विल बी इनसाइड माइनस. अब 2 की टेबल में 16 टाइम्स आता है 32, सो वी कैन राइट हियर 16. और ये फैक्टर सेम आना चाहिए. ये सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने अभी तक जो भी काम किया है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. एंड सो m minus 16 विल बी कॉमन फैक्टर टेकन आउटसाइड और यहाँ से आएगा आपका m, यहाँ से +2. एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस डिविडेंड. ये हो गया डिविडेंड का फैक्टर फॉर्म. अब हम डिवीजन ले सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में करना है. नाउ m square minus 14m minus 32 अपॉन व्हाट वी हैव m plus 2. ये डिवीजन करना है हमें. क्वेश्चन यही था बेसिकली, m square minus 14m minus 32 अपॉन m plus 2. अब ये जो डिविडेंड है इसकी जगह हम लिख सकते हैं m minus 16 into m plus 2. ठीक है, यहाँ से देखिए फैक्टर्स हमने कर लिए हैं, वो फैक्टर्स लिख दिए और अब नीचे आएगा m plus 2. अब इजी है डिवीजन. बताइए कैसे? यहाँ जो सेम फैक्टर है m plus 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया एंड द आंसर इज m minus 16. दिस इज द आंसर. Getting it? Next we take here this one, 5p square minus 25p plus 20. This we have to divide by p minus 1. What we see here? That we can take out 5 as the common factor. इसको बाहर ले सकते हैं और फिर हम आगे देखेंगे कि और भी फैक्टराइज करना होगा. तो पहले चलिए हम इस डिविडेंड को ही सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज करते हैं. We take the dividend. This will be 5p square minus 25p plus 20. यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 कॉमन है तो उसको बाहर ले लेते हैं. 5 will be taken outside. p square minus 5 5s are 25, so 5p, 5 4s are 20, so 4 will be inside. अब आप देखिए 4 है यहाँ पर और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर भी होता है. तो चलिए क्या यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी या नहीं वो देखते हैं. एक बार हम आइडेंटिटी अप्लाई करके देखते हैं. p स्क्वायर हो रहा है, ये 2 स्क्वायर हो रहा है और माइनस है. एक बार दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. p इंटू 2. ठीक है, यहाँ से p ले लिया, यहाँ से 2 और दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. आइडेंटिटी में तो यही होता है. अब ये प्रोडक्ट देखिए क्या 5p के इक्वल आ रहा है या नहीं. तो आप देखेंगे 2 2 ज़ा 4, p ये तो 4p आ रहा है, 5p तो नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म का नहीं है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. इस फॉर्म का एक्सप्रेशन नहीं है और ऐसे में हम आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई
नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? एंड सो हियर वी विल हैव टू फैक्टराइज बाय टेकिंग द फैक्टर्स ऑफ नंबर 4। 4 के फैक्टर्स लीजिए, इट इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1 और इनका सम हमें मिल रहा है 5 जो है मिडिल टर्म का नंबर। एंड सो हियर वी विल बी स्प्लिटिंग दिस 5 एज 4 प्लस 1। ये तो 5 आ गया और यहाँ पर हम p स्क्वेयर माइनस 5 को हम स्प्लिट करेंगे 4 प्लस 1 into p plus 4, and now what we see here, 5 into this will be p square minus 4p minus 1p plus 4। ये क्लियर है? यहाँ से माइनस 4p और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 इंटू p इट्स 1p एंड प्लस 4। अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गई हैं और हम इनको ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, इसमें p कॉमन ले लिया, p माइनस 4 वी विल गेट इनसाइड एंड देन हियर माइनस। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे में क्या कॉमन लेते हैं? 1, बिकॉज 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म, तो 1 को बाहर ले लेंगे एंड व्हाट विल बी इनसाइड p। और क्योंकि यहाँ माइनस लिया है तो इस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 1 की टेबल में 4 टाइम्स ही आता है, सो हियर वी विल टेक 4। यू कैन थिंक ऑफ दिस 4 एज 4 इंटू 1। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको 4 इंटू 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए आप, इन दोनों की हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो बाहर लेना है। हम देख रहे हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 तो दोनों के लिए कॉमन होगा ही, 1 को बाहर ले लिया, यहाँ से p और यहाँ पर क्योंकि हमने माइनस लिया है ये देखिए, इसलिए ये अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा एंड देन 1 इज़ आउटसाइड, 4 विल बी इनसाइड। एंड सो फर्दर इफ़ वी टेक द कॉमन फैक्टर आउट, व्हाट वी गेट, 5 into here we have p minus 4। ये सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है, हम सही कर रहे हैं। सेम नहीं आ रहा है, कुछ गलती कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। p minus 4 बाहर, p minus 1 inside and now these are the factors of the dividend। अब हम easily division carry out कर सकते हैं। we take here now what is given, 5p square minus 25p plus 20 अपॉन p माइनस 1, ये करना है और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू p माइनस 4 p माइनस 1 अपॉन p माइनस 1। ये हो गया, यहाँ से हमने फैक्टर फॉर्म लिख लिया, p माइनस 1 कैंसल्ड एंड नाउ वी गेट द आंसर एज इक्वल टू 5 इंटू p माइनस 4। दिस इज द आंसर। ओके, गेटिंग इट? तो पहले हम जो न्यूमरेटर है, डिविडेंड है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टर फॉर्म में लाएंगे और फिर हम डिवीजन करेंगे। नेक्स्ट वी टेक हियर 4yz इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 6z माइनस 16। इसको हमें डिवाइड करना है 2y इंटू जेड प्लस 8 से। तो अब यहाँ पर भी हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। 4yz इज़ ओके, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? 16 के फैक्टर्स लेते हैं। वी नो दैट 16 इज 8 2 ज़ा 16 एंड 4 4 ज़ा 16। अब हमें चाहिए डिफरेंस एज 6, माइनस 16 है ना, तो फैक्टर्स को माइनस करने पे 6 आए। वी सी हियर 8 माइनस 2 इट इज़ 6, तो यहाँ इस 6 की जगह हम लिख सकते हैं 8 माइनस 2 एंड विद दिस वी कैन राइट जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16। ठीक है, यहाँ पर 6z को हमने लिख दिया 8z माइनस 2z, एक स्टेप हमने डायरेक्टली लिख लिया। आप यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 इंटू जेड माइनस 16 ये स्टेप ले सकते थे और फिर उससे ये स्टेप आ जाता 8z माइनस 2z, तो वो एक स्टेप मैंने डायरेक्टली लिख लिया है। इफ़ यू वांट यू कैन राइट दिस स्टेप ऑल्सो इन बिटवीन एंड देन वी हैव 2y इंटू जेड प्लस 8 in the denominator. This is 4yz. Here we can take z as common, z plus 8 and minus here we take 2 as common, z, और क्योंकि ये माइनस बाहर लिया है तो ये सिंबल चेंज होके प्लस हो जाएगा and then 2 8s are 16 so 8 will be here and here we have 2y into z plus 8. अब फर्दर आप आगे और इसको कॉमन फैक्टर को लीजिए बाहर, 4yz into z plus 8, here we have z minus 2 upon here we have 2y into z plus 8. अब z plus 8 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, cancel this 4 2 times by 2 and what is left we have 2z into z minus 2.
यहाँ से 2, यहाँ से z और z माइनस 2, ये आंसर हो गया। तो हर बार हम फैक्टराइज कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द आंसर। वी टेक हियर दिस वन 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है 2p इंटू पी प्लस क्यू से। नाउ व्हाट वी सी, दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। सो वी कैन राइट 5pq इंटू पी माइनस q इंटू p प्लस q अपॉन वी हैव 2p इंटू p प्लस q। Why? Since a square minus b square is given as a minus b into a plus b, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए हमने यहाँ इसको ब्रेकअप कर दिया है एंड नाउ p plus q will be cancelled, cancel p by p and then 5/2 q into p minus q. This is the answer. And now we can take the next one. Here we have 12xy into 9x square minus 16y square. We have to divide it by 4xy into 3x plus 4y. Again what we see here, we have the difference of two squares. इसको आप लिख सकते हैं 3x whole square और इसको आप लिख सकते हैं 4y whole square. And then we have 4xy into 3x plus 4y. Again we will use the third identity. We will get it 12xy. This one will be 3x minus 4y into 3x plus 4y. Identity use कर ली. Here we have 4xy in the denominator, 3x plus 4y. ठीक है, using identity third, you can mention the identity also. A square minus b square is given by a plus b, a minus b. Now this will be here cancelled, 3x plus 4y, 3x plus 4y, cancel xy by xy. 4 से आप 12 को 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, यू हैव 3 इंटू 3x माइनस 4y एंड दिस इज द आंसर। तो पहले आप फैक्टराइज कीजिए और फिर आप डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट वी टेक हियर 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। अगेन हियर व्हाट वी सी, 50 and 98, they both are divisible by 2. So we can take the common factor out 2. And what will be inside? 25y square and minus, if you divide 98 by 2, you will get 49. ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हैं, 50 को 2 से डिवाइड कीजिए 25 मिलेगा, 98 को 2 से डिवाइड कीजिए 49 मिलेगा। हम देख रहे हैं दोनों इवन नंबर्स हैं इसलिए 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 को बाहर ले लिया कॉमन फैक्टर एंड इनसाइड वी हैव 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। अगेन वी सी दिस वन 39y क्यूब इंटू 2, ये तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं 5y होल स्क्वायर है and this is 7 square. So again we have the difference of two squares and again we will apply the third identity. इस तरह से हमने ये लिख दिया है. Now we will apply the third identity. We can make some space. One partition needs to be done. Here 39 y cube into 2. It's okay. इसको आप लिख सकते हैं 5y minus 7, 5y plus 7 and in the denominator we have 26y square 5y plus 7. Give the reason using identity third. You can also mention the identity here at this stage. Now 5y plus 7 will be cancelled by 5y plus 7, then we have 39 upon 26 y cube into 2 into 5y minus 7 upon y square. अब ये दोनों 13 की टेबल में आते हैं, 13 3s are 13 2s are, then cancel 2 by 2 and then we have 3y into 5y minus 7. ये y cube है, ये y square है, 3 minus 2 it will be 1 and so 3y into 5y minus 7 and this is the answer to this question. With this we complete exercise 14.3. I hope all the questions are clear. First we need to factorize the dividend and then we need to divide. It's clear. With this we complete this exercise and it's bye for now.